السلام علیکم. 8 کلاس کے تمام طلباء و طالبات کا پھر ایک مرتبہ ایس ایجوکیشن اکیڈمی میں ہم خیر مقدم کرتے ہیں. پیارے بچوں، آلریڈی ہم سبق قوت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اس سے متعلق مختلف ویڈیو ہم نے بنا چکے ہیں. اگر آپ وہ نہیں دیکھے ہیں تو ہمارے اس چینل پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. آئیے آج ہم قوت کے اس ٹاپک میں عضلاتی قوت جسے ہم انگلش میں مسکولار فورس کہتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کریں. تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ہم عضلاتی قوت کہتے کسے ہیں. انگلش میں اگر ہم دیکھیں مسکولار فورس یعنی مزلز جسے ہم کہتے ہیں، یعنی ہماری بافتیں جو ہوتی ہیں، ہمارے جو عضلات ہوتے ہیں، ان کی طاقت کو استعمال کر کے جو بھی کام کیا جاتا ہے اس قوت کو ہم عضلاتی قوت کہتے ہیں. یعنی وہ طاقت جو عضلات کے ذریعے صرف کی جاتی ہے عضلاتی قوت کہلاتی ہے. یعنی وہ طاقت جو عضلات کے ذریعے، بافتوں کے ذریعے ہم صرف کرتے ہیں یعنی خرچ کرتے ہیں، ویسی قوت کو ہم عضلاتی قوت کہتے ہیں. روزمرہ زندگی میں اس کی بہت ساری مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں. جیسے صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو برش کرتے ہیں دانت کو برش کرنے کے لیے بھی ہمیں عضلاتی قوت کی ضرورت پڑتی ہے. وہاں ہم عضلاتی قوت کو صرف کرتے ہیں. یعنی پہلے تو ہم لکھ رہے ہیں کہ دانت کو برش کرنا. اب اگر دوسری اور ایک مثال دیکھیں ہم تو پانی نہاتے ہیں. ہم تو پانی نہانے کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں، ہماری بکیٹ میں سے ایک مگ کے ذریعے جو ہے پانی لیتے ہیں. تو پانی جب ہم لے رہے ہیں تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ہماری بافتیں یعنی ہمارے عضلات کام کر رہے ہیں اور ہم اسے پانی کو اٹھا رہے ہیں اور اس طرح سے پانی نہا رہے ہیں. یعنی پانی نہانے کے لیے بھی جو ہے ہم عضلاتی قوت کو استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں ایک تصویر دی گئی ہے. اس تصویر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ کچھ بچے بس میں چڑھ رہے ہیں. یعنی بس میں چڑھنے کے لیے بھی بچوں کو جو ہے عضلاتی قوت کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد اب یہ تصویر میں دیکھیے کہ 2 آدمی بھاگ رہے ہیں. تو بھاگنے کے لیے بھی جو ہے انہیں عضلاتی قوت کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے علاوہ اس تصویر میں دیکھیے کہ یہاں پر صفائی کی جا رہی ہے، کچن کی ہم صاف صفائی کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے، ہمیں عضلاتی قوت کا استعمال کرنا پڑتا ہے. جیسے جھاڑو مارتے ہیں ہم صفائی کے لیے، تو وہاں پر بھی کیا ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ کی یعنی عضلاتی قوت کو استعمال کیا جاتا ہے. اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں گے تو یہاں پر ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھ دھونے کے لیے بھی ہمیں عضلاتی قوت کو استعمال کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم لے جا کے ہاتھ رکھ دیے اور پانی گر رہا، نہیں، وہاں پر کیا کرنا پڑتا ہے، ہمیں اپنے ہاتھ کو دھونا پڑتا ہے، ہمیں رگڑنا پڑتا ہے یہاں پر. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، عضلات ہمارے کام کرتے ہیں تو عضلاتی قوت یہاں پر استعمال کی جاتی ہے. اس کے علاوہ بورڈ پر لکھنا، یہاں پر جو تصویر نظر آ رہی ہے جیسے کہ ہم لکھ رہے ہیں تو لکھنے کے لیے بھی ہماری بافتیں یعنی عضلات کام کرتے ہیں. لہذا اس میں بھی جو ہے عضلاتی قوت استعمال ہوتی ہے. اس کے علاوہ پیدل چلنے کے لیے مختلف مثالیں ہماری درسی کتاب میں موجود ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے رہتے ہیں. تو پیارے بچوں، ہمارے پاس ایک مشغلے کے طور پر ایک جدول دیا گیا ہے جہاں پر اس بات کو ظاہر کیا گیا ہے کہ کوئی 10
काम ऐसे लिखिए जहां पर हम उजलाती कुव्वत को आयत करते हैं। तो मिसालें आपको देना है, कितनी भाई? 10 मिसालें आपको देना है। सिलसिला निशान और उजलाती कुव्वत की मिसालें आपको लिखना है। यहाँ एक जदवल आपकी दर्सी किताब में दिया गया है, उस जदवल को आप लिखिए। वहां पर पहली मिसाल आपको दी गई है कि एक बास्केट को उठाना, ओके, यानी एक किसी बास्केट को उठाने की मिसाल दी गई है। यहाँ पर भी जो है हम जब किसी चीज को हम उठाते हैं, यानी डस्टर को उठाना, चौक को उठाना या बॉल को उठाना, तो इसके लिए हमें उजलाती कुव्वत की जरूरत होती है। तो चंद 10 मिसालें आपको जो है उजलाती कुव्वत की इस जदवल में दर्ज करना है। चलिए अब हम ये देखेंगे कि इस उजलाती कुव्वत की वजह से हमारी बाफ्तों पर क्या असर पड़ता है। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे दिल जो है जिस्म में वो भी हरकत कर रहा है, हमारे फेफड़े भी जो है काम कर रहे हैं, तो उसमें भी जो बाफ्तें हैं वो भी काम कर रही हैं, वो भी कुव्वत जाहिर कर रही है। अगर दिल धड़कना बंद कर दे, हरकत करना बंद कर दे, तो इंसान मर जाता है। तो यहाँ पर भी हमारी ये जो बाफ्तें हैं, ये जो उजलात हैं, ये भी हरकत करते हैं, ये भी कुव्वत लगाते हैं। इसी तरह ये बाफ्तें जो है बाज़ वक्त सुगड़ती हैं और बाज़ वक्त फैलती हैं, बाज़ वक्त सुगड़ती हैं और फैलती हैं। जैसे कि हम आमतौर पर फेफड़ों की मिसाल लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूलते हैं और जब हम सांस छोड़ देते हैं तो फेफड़े सुकड़ जाते हैं। इसी तरह जब हम एक डंबल लेते हैं, डंबल आमतौर पर आप वर्जिश करने वालों को देखे होंगे, जब वो डंबल लेके इस तरह से अपनी बॉडी बनाते हैं तो कुछ बाफ्तें, यानी जब हम छू कर देखेंगे तो कुछ बाफ्तें यानी गोश्त उजलात जो है करीब आएंगे और कुछ दूर आएंगे। इसके लिए हमारी दर्सी किताब में एक और मिसाल दी गई है कि जब आप एक गेंद को फेंकेंगे, तो जब आप गेंद को लेकर जब पीछे ले जा रहे फेंकने के लिए, तो आपकी सीने की जो बाफ्तें हैं यानी उजलात हैं वो क्या हो रही हैं, खींचे जा रही हैं, जबकि आपके ये शोल्डर यानी पिछला हिस्सा जो है वहां की जो बाफ्तें हैं यानी वहां का जो गोश्त है वो सुकड़ रहा है। तो आमतौर पर उजलाती कुव्वत में जो है बाफ्तें सुकड़ती हैं और फैलती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी उजलाती कुव्वत की चंद मिसालें और उसके बारे में मालूमात थी। आइए अब हम देखेंगे उमूदी कुव्वत किसे कहते हैं। चलिए आइए बच्चों, अब हम उमूदी कुव्वत नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारी किताब में दिया गया है कि क्या इस मेज पर रखी हुई हमारी जो साइंस की दर्सी किताब में जो मेज पर रखी हुई है, इस पर रगड़ की कुव्वत असर करती है क्या? इस तरह का सवाल किया गया है। नहीं, आइए देखेंगे क्या है। जब मेज पर एक किताब रखी जाएगी, जो सतह यानी ये जो जमीन की सतह है, जमीन की सतह जिसे हम कह रहे हैं, तो जमीन की सतह के बिल्कुल उमूद पर है। क्या है भाई? ये उमूद पर है। तो इस उमूद को हम कहते हैं इमादी सिमत। क्या कहते हैं? इमादी सिमत में अगर हो कोई किताब जमीन की सतह से, तो इमादी सिमत कहते हैं, और इस पर जो कुव्वत असर करती है उसको हम उमूदी कुव्वत कहेंगे, यानी नॉर्मल फोर्स। क्या कहेंगे भाई? नॉर्मल फोर्स। अब अगर गौर करेंगे तो इस दर्सी किताब को हम मेज पर रखें, अगर अचानक ये जादू के जरिए कहा गया है हमारी किताब में, लेकिन अगर हम अचानक इस टेबल को हटा देते हैं तो क्या होता है? ये बुक क्या करेगी? नीचे गिर जाएगी। नीचे क्यों गिरेगी? इसकी वजह क्या है? तजाजुबी कुव्वत है। क्या है? तजाजुबी कुव्वत, जिसे हम इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है Fg, यानी जमीन की सतह क्या कर रही है? अपनी तजाजुबी कुव्वत के असर को मजबूत बनाते हुए यानी एक कुव्वत लगा रही है, जिसे हम G यानी ग्रेविटेशनल से जाहिर कर रहे हैं। उसी तरह एक उमूदी कुव्वत है जो इसके बरखिलाफ, जमीन की तजाजुबी कुव्वत के बरखिलाफ उसे
हालत सुकून में रख रही है, इसीलिए यहां हम लिखे FN। N का मतलब है नॉर्मल फोर्स। तो ये दो जो कुव्वतें हैं मसावी होती हैं और मुखालिफ होती हैं। क्या क्या होती हैं भाई? मसावी भी होती हैं और मुखालिफ सिमत में असर करती हैं। इसी तरह इसीलिए ये किताब हालत सुकून में होगी। अगर ये सहारा अगर निकल जाए, यानी मेज का सहारा अगर निकल जाए, तो वो चीज क्या होगी? जमीन की सतह पर गिर जाएगी और वहां पर तजाजुल कुव्वत असर करेगी। तो इस तरह उमूदी कुव्वत की हम एक मिसाल देखते हैं। बहुत सारी चीजें जो है आमतौर पर कोई भी चीज जब हम फेंकते हैं तो वो जमीन पर ही गिरती है, क्योंकि जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने तजाजुल कुव्वत यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को रखा है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी टॉपिक, जिसमें हमने उजलाती कुव्वत की चंद मिसालें देखी और उमूदी कुव्वत के बारे में समझने की कोशिश की। इसके अलावा और नई टॉपिक के साथ हम आपके साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।